Hello everyone, welcome to Aptly Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. So let's get started with today's topic list. So these are the list of the topic that I'll be discussing with you. Today is 30th of July. So the first topic is new national education policy. This is a very important news for the prelims and mains examination. The second topic is new base for the COVID-19 patients. The third is Rafale's arrival in India. The fourth topic is Turkey new social media law, and the last is ecosystem integrity. Apart from these topics, we'll have some MCQs question at the end of this video with the explanation of yesterday questions. तो कल की जो सवाल थे उसके जो करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Aptly Plus Academy for Civil Services on YouTube, and do not forget to hit the like button on this video. So the first topic is new educational policy 2020. This is very important news for your prelims examination and very important for your general studies paper 2, right? Where the issues related to education and management of education is already mentioned in your syllabus. And at the same time, this again can be important for your essay paper where you can use the folder point as well as in the case studies, right? So these are some of the important section where you can use it. The Union Cabinet has recently approved the new National Education Policy 2020 और इसकी जो पैनल हेड की गई थी इसरो के चीफ थे के कस्तूरी रंगाराजन, उसने सबमिट किया अपना रिपोर्ट, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट था दैट वाज सबमिटेड इन दिसंबर 2018 and it was made public for the feedback in 2019 after the Lok Sabha elections, right? So this name is again important. He was ISRO chief, and the first education policy अभी जो आई एजुकेशन पॉलिसी ये 21st सेंचुरी में अब तक की रिवैम्प करने वाली पहली पॉलिसी है, राइट? तो जो नई पॉलिसी अभी आई है वो 34 ईयर ओल्ड जो पॉलिसी थी हमारी 1986 में, उसको रिप्लेस करती है. तो इससे पहले 1986 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी जो पूरी तरह से चीज़ों को चेंज की थी, और अब जो आई है दिस इज 2020. सो ऑलमोस्ट आफ्टर 36 ईयर्स वी हैव अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. ना बात करें कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की, तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, साथ के साथ कुछ आपको इन्फोग्राफिक भी दिखाऊंगा ताकि आपकी क्लैरिटी बन जाए इस टॉपिक पे. तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने एम्फेसिस दिया है टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू द स्कूल एजुकेशन. तो सबसे पहले प्री लेवल से लेकर के सेकेंडरी स्कूल के लेवल तक पे सभी लोगों को स्कूलिंग मिलनी चाहिए. तो यूनिवर्सल कवरेज ऑफ एजुकेशन की बात की गई है. उसके अलावा जो 2 करोड़ स्कूल के जो बच्चे होंगे उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात की गई है थ्रू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. और जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है या जो एजुकेशन है उसको एक करिकुलम के थ्रू जो पेडोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जिस तरह से टीचिंग मेथोडोलॉजी होनी चाहिए उसको फॉलो की जाएगी विद अर्ली चाइल्ड केयर एंड द एजुकेशन. और जो 10+2 की जो स्ट्रक्चर सिस्टम है, जो 10+2 का जो करिकुलम है, नाउ दैट वुड बी रिप्लेस्ड बाय 5+3+3+3+4 curriculum structures, right? So this is a new methodology which government has adopted. उसके अलावा जो न्यू सिस्टम है दैट विल हैव 2 ईयर ऑफ स्कूलिंग. जो नई बेसिकली जो नई ग्रामीण क्षेत्र में या फिर जो शहरी क्षेत्र हैं, टॉकिंग अबाउट द रूरल एंड अर्बन एरियाज, तो वहाँ पे 12 ईयर की स्कूलिंग होगी विद 3 years ऑफ द आंगनवाड़ी एंड प्री स्कूलिंग. So this is something which is mandatory. Now the policy call for the setting of national mission for the foundational literacy and numeracy. So this would be by MHRD, Ministry of Human Resource Development. और जो स्टेट्स है दैट विल प्रिपेयर द इम्प्लीमेंटेशन प्लान की कैसे जो यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी है या जो न्यूमेरेसी में वो सारे प्राइमरी स्कूल्स में किस तरह से पूरे किए जाएंगे फ्रॉम ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स. सो दिस हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय 2025. और एक नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी बनाई गई है. सो दिस वुड बी फॉर्मुलेटेड अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. एंड स्टूडेंट विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट. तो किसी भी चीज़ पे चाहे वो +2 की बात हो, कोई स्ट्रीम्स को सेग्रीगेट नहीं किया जाएगा. स्टूडेंट्स अपने हिसाब से सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकेंगे. दिस इज़ अ एक्सलेंट थिंग्स विच गवर्नमेंट हैज़ डू. इससे बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है. ना बात करें, देयर विल बी नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन द आर्ट्स, साइंस या फिर जो अलग करिकुलम्स हैं, जो लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, कॉमर्स पढ़नी है, तो उसमें अब ऑप्शंस होंगे कि आप मिक्स करके भी सब्जेक्ट्स से +2 के साथ आगे पढ़ पाएंगे. और जो वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है वो क्लास 6 से ही इंक्लूड कर दी जाएगी. फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स द वोकेशनल इंटर्नशिप वुड बी इंक्लूडेड. अगर जो बच्चा वोकेशनल ट्रेनिंग में आगे बढ़ना चाहता है उसको 6 क्लास के ऑनवर्ड वो आगे बढ़ा सकता है. नाउ द न्यू कम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जिसको NCFSE भी कहते हैं, सो दैट विल बी डेवलप्ड बाय NCERT. तो NCERT
को एक नोडल बॉडी बनाई गई है जो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पे काम करेगी। उसके अलावा असेसमेंट सेंटर बनाने की बात की गई है परख नाम से, जैसे परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द नॉलेज इन हॉस्टलिक डेवलपमेंट। तो पूरे हॉस्टलिक तरीके से किस तरह से एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो उस बच्चे की, उस कोशिश पे ये परख इनिशिएटिव बनाई गई है। एक नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा बेसिकली ये। उसके अलावा जो एम्फेसिस दी गई है, स्पेशल एम्फेसिस वुड बी गिवन ऑन सोशली एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। जो बच्चे होंगे, जो ग्रुप हैं, उन लोगों को खास करके उनके जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक जो कल्चर्स हैं या जिस जोग्राफिकल रीजन से वो आते हैं या कोई डिफरेंटली एबल है, उनको एक स्पेशल प्रिविलेज या एडवांटेज दी जाएगी। साथ के साथ एक नेशनल कॉमन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड टीचिंग, जिसको एनपीएसटी भी कहते हैं, ये डेवलप की जाएगी एनसीईआरटी के द्वारा बाय 2022, ताकि जो एनसीईआरटी की जो टीचर्स हैं वो हर लेवल पे कॉम्पिटेंट हो और एक एग्जामिनेशन को, कॉमन लेवल जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसको पास करके ही स्कूल में पढ़ाएंगे वो। नाउ the state and the UT will set up independent school standard authority। तो एक SSA बनाई जाएगी जो कि पैरामीटर कुछ रखेगी कि क्या पैरामीटर्स होने चाहिए स्कूल की क्वालिटी टीचिंग के लिए, करिकुलम के लिए और साथ के साथ टीचर्स के लिए, राइट। उसके अलावा मदर टंग पे जोर दी गई है, जहाँ पे वेर एवर पॉसिबल देर विल बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अल्टिल ग्रेड 5। तो 5 तक जो भी बच्चा जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, ही कैन कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज टिल 8th क्लास ऑनवर्ड्स। 5 क्लास के 5th के बाद भी वो 8th क्लास तक उसको कंटिन्यू कर सकता है और मदर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन पूरी कर सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी दिस वुड बी फॉलोड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। जरूरी नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल के साथ भी ये जो रूल्स हैं ये मैंडेटरी होंगे। उसके बाद अदर प्रोविजन आर ऑल्सो देयर इन द पॉलिसी। अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो सिग्निफिकेंस की अगर बात करें पॉलिसी की, क्या सिग्निफिकेंस है 2020 जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसके आने के बाद कैसे चीज़ें बदलेगी। सो द पॉलिसी कॉल फॉर द फंडामेंटल पिलर ऑफ एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। तो ये 5 चीज़ों पे काम करेगी। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं या किसी चीज़ के बारे में लिखेंगे तो ये पॉइंट आप ज़रूर लिखना कि क्या रेलेवेंस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। उसके अलावा इट विल ऑल्सो अलाइंड विद द 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमारा एसडीजी का गोल है उसको भी ये पूरा करता है, राइट। And the policy aims for the transformation of India, vibrant knowledge on the society and global knowledge superpower। तो इंडिया को जहाँ पे नॉलेज सुपर पावर बनाने की बात की गई है, जो पूरे होलिस्टिक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी विद मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, 21st सेंचुरी की जो ज़रूरतें हैं आज में, जो करियर ग्रोथ है या फिर जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, स्पेशल स्किल ट्रेनिंग है, उन सारी चीज़ों पे और इंडिविजुअल एज एन स्टूडेंट उनकी जो यूनिक कैपेबिलिटीज़ है उसको बाहर लाने में, उसको निखारने में मदद करेगी। तो पूरा एम सरकार का ये है, बहुत ही बड़ी पॉलिसी है, बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म की गई है। आप डिटेल में मैंने 2 इन्फोग्राफिक भी दिया है, आप उसको भी देख करके आगे मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। हाउ द न्यू पॉलिसी वुड बी इम्प्लीमेंटेड, कैसे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी। सो एजुकेशन बेसिकली अगर बात करें तो कंकरेंट लिस्ट में आती है, जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दोनों का रोल होता है, राइट, कंकरेंट लिस्ट में। बेसिकली उसके बाद अगर बात करें, देयर आर द स्टेट गवर्नमेंट हु हैव बीन ब्रॉट ऑन द बोर्ड एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन विद द डिसीजन। तो राज्य सरकार के साथ मदद, उनकी सहायता लेकर के, उनके साथ बेसिकली कंसल्टेशन करके गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है। नाउ दिस इज द थिंग विच वी हैव डिस्कस। उसी के बारे में अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, नाउ इट विल बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दिस इज अ वेरी गुड थिंग विच गवर्नमेंट हैज डिड। दिस इज अ डेडिकेटेड मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया एज पर एज स्कूल लेवल पे इतनी ज़रूरत नहीं थी। दिस इज समथिंग वो ऑफिस लेवल पे ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर आप एचआर करते हैं, उन सारी चीज़ों से। तो इंडिया में एक डेडिकेटेड एजुकेशन मिनिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। तो नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, very soon when you will open the website of the Ministry of Human Resources, you will find it that is Ministry of Education। और जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, क्लास 12 लेवल पे मंथली स्ट्रीम होंगे, कोई बाउंडेशन नहीं होगी, मल्टीलिंगुअल तरीके से कर सकेंगे, 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो पब्लिक स्पेंडिंग है एजुकेशन पे, वो स्टेट को सेंटर ने बढ़ा करके 6% ऑफ जीडीपी के आसपास करने की बात की है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है, दैट विल बी नाउ रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो मैंने आपको बताया। और सारी बातें वही है जो हमने डिस्कस किया है। तो आप बेसिकली इन्फोग्राफिक के थ्रू अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, राइट। ना बात करें दूसरे टॉपिक की, न्यू डेटाबेस फॉर द कोविड-19 पेशेंट्स। तो हमारी जो ICMR है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, उन्होंने एक डेटाबेस बनाया है कोविड-19 पेशेंट्स को लेकर के, ताकि उसके बारे में और अच्छे से स्टडी की जा सके।
तो ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है ICMR, वो वर्क कर रहे हैं टू ब्रिंक आउट अ डेटाबेस जहाँ पे जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में अक्रॉस इंडिया एडमिटेड हुए हैं, उनसे लेकर के कुछ डेटाबेस बनाया जा रहा है ताकि आगे जो स्टडीज़ में मदद मिल सके। तो एक कोलैबोरेशन की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो हमारी है उसके साथ, और ऑल इंडिया ऑफ जो एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उनके साथ कोलैबोरेशन किया गया। तो जो प्रोजेक्ट है वो एक नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री बनाएगी विच विल ऑल्सो सर्व एज अ क्रूशियल प्लेटफॉर्म टू कंडक्ट द क्लिनिकल ट्रायल। आगे जो क्लिनिकल ट्रायल वैक्सीन की होनी है या कोवैक्सीन की ट्रायल ऑलरेडी इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है एम्स में जो, और 12 ICMR ने जो सेंटर्स सेलेक्ट किए हैं उनमें ऑलरेडी ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं अपने अपने लेवल्स पे, राइट। तो जो न्यू थेरेपीज़ हैं दैट वुड बी ट्रीटमेंट के लिए जो ज़रूरी हैं या किस तरह से ये स्टडी मदद कर सकती है डेटाबेस को, वो सारी चीज़ों को ICMR आगे यूज़ करेगी। अब बात करें बेनिफिट्स क्या होंगे इस डेटाबेस के, क्यों ICMR इस तरह के डिसीजन इन्होंने लिया है। सो द प्लान एम टू ब्रिंग द रिगरस database of the coronavirus that was admitted in the hospital and to improve the treatment in the hospital। ठीक है, किस तरह से ट्रीटमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या न्यू सिम्टम्स हैं, कितने टाइम के लिए क्वारंटीन करने की ज़रूरत है, क्या सिम्टम्स के जो एसिम्टोमेटिक्स जो पेशेंट्स हैं वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हैं, उनको किस तरह से ट्रेस करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें उस डेटाबेस से मदद मिलेगी। And the database will also allow the health official of the country to conduct the clinical trial and study the effectiveness of the new therapies that would be treating the deadly infection, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। However, जो कलेक्ट की जाएगी डेटा, दे में हेल्प द हेल्थ केयर वर्कर टू अंडरस्टैंड द इंटरवेंशन, दे में हेल्प टू अर्वाइव एंड द पेशेंट्स जो हैं उसमें सर्वाइवल रेट कितना है, किस तरह के सिम्टम्स देखे गए, कितने टाइम में वो ठीक हुए हैं, उसमें जो बेसिकली एंटीबॉडीज़ जितनी बननी चाहिए, जो जो IgM है वो कितने टाइम पे बन रही है, क्या वो प्लाज्मा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखी जाएगी। एंड दिस विल ऑल्सो इंक्लूड द टेस्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यू थेरेपीज बाय यूजिंग डेटाबेस एंड द प्लेटफॉर्म ऑफ द clinical trials, right? Now the third topic is Rafale arrive in India. This is again a good news which is coming to India's national security, और ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के पॉइंट आप अपने ऐसे में फोल्डर पॉइंट पे यूज़ कर पाओगे। नो अभी रिसेंट में 5 बेसिकली फर्स्ट 5 ऑफ 36 जो रफाल जेट आनी है वो अम्बाला के हमारे एयरबेस एयरफोर्स कैंप है वहाँ पे पहुँच चुकी है वेडनेसडे को, और एक फॉर्मल इंडक्शन किया गया था रफाल के जहाँ पे 17 स्क्वाड्रन वो शेड्यूल टू, और जो आगे और आने वाले जो रफाल हैं वो 17 बेसिकली अगस्त तक आनी है 17 और, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे फॉर्मली इनोग्रेट की जाएंगी। नाउ दे विल बी जो जितनी आई हैं अभी फर्स्ट 5 जो आई हैं उसमें सुकोई जो हमारी फाइटर जेट हैं उन्होंने उनको स्कॉट किया था टिल अम्बाना एयर, जो हमारी अम्बाला में जो एयर बेस है वहाँ तक उनको स्कॉट किया गया था, राइट। सो दिस इज आई एम टेलिंग यू टू गेट यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द न्यूज़ इज ऑल अबाउट, राइट। नो एडवांटेजेस की अगर बात करें तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं रफाल के एयरफोर्स में इंडक्ट होने के बाद, और किस तरह से ये हमारे एयरफोर्स के जो पावर को और ऑगमेंट करेगी और बूस्ट करेगी। सो रफाल एक तरह से जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इट विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर ऑफ द मिलिट्री हिस्ट्री। बहुत हद तक हमें जो हमारी सुपर पावर जो बेसिकली एयरफोर्स में वी आर इन द टॉप 3 कंट्रीज ना। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की बात करें तो एक रिवरनाइज कैपेबिलिटीज़ होगी हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास, और जो रफाल है वो कैपेसिटी को बूस्ट करने के साथ साथ एक इस टाइम पे आई है जहाँ पे इंडिया और चाइना का टेंशन चल रहा है, तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्टर्न लद्दाख रीजन में है उसमें भी बहुत हद तक मदद मिलेगी, और कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम एक साइकोलॉजिकल प्रेशर चाइना पे तो बनेगा ही कि इंडियन एयरफोर्स इज रियली अ कॉम्पैक्ट एंड अ वेरी रिगरस फोर्स विच इज नो वर्किंग फॉर इंडिया। तो एक इंडियन एयरफोर्स का बहुत ही अच्छा इंप्रेशन वर्ल्ड वाइड बना है, और इंडक्शन के बाद रफाल के इंडक्शन के बाद जो हमारी फाइटर एयरक्राफ्ट की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। नाउ द अदर टॉपिक इज टर्की न्यू सोशल मीडिया, दिस इज देयर इन द न्यूज़, और इस तरह के पॉइंट आप फोल्डर पॉइंट पे यूज़ कर पाएंगे, प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली कुछ या इंटरव्यू में कई बार आप इंटरव्यू जैसे पॉइंट में यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ों को बता पाएंगे। टर्की के पार्लियामेंट ने नई गाइडलाइन पास की है, वहाँ पे जो अथॉरिटी है उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, और ये प्लेटफॉर्म पे बेसिकली ये इनको कंप्लाई करनी होगी, जो भी स्ट्रिक्ट कंडीशन बनाए गए हैं अगर ये कंप्लाई नहीं करते हैं तो इनको फाइन लिया जाएगा और इनकी जो बैंडविड्थ है उसको रिडक्स कर दिया जाएगा, उसमें गिरावट लाई जाएगी, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, राइट। एंड इट विल रिक्वायर द सोशल मीडिया टू अपॉइंट अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव टू एड्रेस द अथॉरिटीज़ कंसर्न। हर सोशल मीडिया हो
उनको एक अपनी रिप्रेजेंटेटिव बनानी होगी, अगर किसी से बात करनी है तो एक इमीडिएट नोडल ऑफिसर, जैसे इंडिया में अगर आप आरटीआई फाइल करते हो तो आरटीआई के लिए एक आरटीआई स्पेशल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर होते हैं जो आरटीआई के सारे मैटर्स को देखते हैं। तो उस तरह से सोशल मीडिया के लिए एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव होना मैंडेटरी होगा टर्की में। Now, this will allow to the Turkish authorities to remove the content from other platform और blocking the access of the content। अगर कुछ ऐसे irrelevant content है नेशनल सिक्योरिटी के पर्पसेस को लेकर के या और भी किसी चीज़ों को लेकर के जिसको समाज जो सरकार समझती है कि दिस इज़ नॉट इन लाइन विद द सिटीजन वेलफेयर, तो उसको बैन कर सकती है, इंक्लूडिंग द कंपनीज लाइक फेसबुक, यूट्यूब। इन सारे को बताया गया कि अगर आप कुछ ऐसे कंटेंट को दिखाते हो तो आपकी बैंडविड्थ को कम कर दिया जाएगा और 90% ऑफ द एसेंशियली वुड बी ब्लॉक्ड विद पेनाल्टीज, और साथ के साथ पेनाल्टीज भी लगाई जाएंगी। और एक एस्टिमेशन है कि 90% ऑफ मेजर मीडियाज इन टर्की कम्स अंडर द ओनरशिप ऑफ द स्टेट एंड इज क्लोज टू द गवर्नमेंट। ये बहुत ही ज़रूरी होगा, एक रेगुलेशन लाई गई है। इंडिया में फ्री स्पीच को लेकर के इस तरह से चीज़ें नहीं आ सकती है, बट अगेन देयर हैज़ टू बी सम बैलेंस, and there has to be a balance between the restriction and the right which is provided in the country like India. We have the freedom of speech and expression. Now the last topic is ecosystem integrity. This is also a good news which talks about the relation between the species, environment and the diseases, right? So this is again important for your general studies paper 3. Now बात करें जो कोविड-19 पैंडमिक है उसमें देखा जाए अगर ह्यूमन लाइफ को पूरी तरह से ख़राब किया, इकोनॉमी पूरी तरह से हमारी अनप्रेसिडेंटेड रेट से गिरी है और अक्रॉस द कंट्रीज देयर हैव बीन प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। बट साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है और जो वाइल्ड लाइफ की लॉस हो रही है कहीं ना कहीं ये लिंक करती है इमरजेंस ऑफ एपिडेमिक्स की, क्योंकि एक इकोसिस्टम में तालमेल बना के रखना, चाहे वो फोल्रा हो, फोना हो, ह्यूमन बींग्स हो, सबकी एक तालमेल होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आगे आगे बताऊंगा इसके बारे में। जो लॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उसके वजह से कैसे कैसे चीज़ें अराइज हुई है। तो डेंजरस इन्फेक्शन की अगर बात करें, इबोला, बर्ड फ्लू, मियर्स, सार्स, नीपा, ये सारे जो वायरस थे, ये सारे जो डिजीजेस थे, वो बेसिकली ट्रांसफ़र हुए हैं वाइल्ड एनिमल्स टू ह्यूमन। और ये वाइल्ड एनिमल से ह्यूमन में कैसे ट्रांसफ़र होंगे? जब कोई भी वाइल्ड एनिमल को ह्यूमन के द्वारा खाया जाएगा या फिर बेसिकली कुछ ऐसे तरीके से उनको यूज़ की जाएगी जहाँ पे डायरेक्टली ह्यूमन कांटेक्ट हो सकती है, राइट? तो बेसिकली इन द टाइम्स ऑफ फूड, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो फूड के थ्रू ही ट्रांसफ़र हुई है। नाउ इन ऑर्डर टू क्लियर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फॉरेस्ट और हैबिटेट्स को हमने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया है अपने जो अर्बनाइजेशन को लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को डिटोरेट करता है, क्लाइमेट चेंज को प्रमोट करता है। एंड इन दिस प्रोसेस वी हैव लॉस्ट सेवरल स्पीसीज। सिर्फ प्लांट नहीं बल्कि हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज थे, इंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, उनको भी इससे नुकसान पहुंचाया है। और जो ह्यूमन इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है, दैट्स रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी। उसके एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको वुहान का एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक एविडेंस है कि कैसे वुहान के जो वेट मार्केट है, आपको पता होगा, आप अगर विकिपीडिया करेंगे तो आपको वेट मार्केट के बारे में मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब पे जाके भी इसके बारे में देख सकते हैं। जो वेट मार्केट है वो बेसिकली पूरे एशिया में एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे सारे एग्जॉटिक स्पीसीज भी आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे बेसिकली मीट के तौर पे उन सारी चीज़ों को सेल की जाती है। तो ये अंडरस्टूड किया गया कि जो कोविड-19 की जो ट्रांसमिशन है वो वहाँ से कैसे हो सकती है, एक एविडेंस के तौर पे यहाँ बताया गया। तो 2 हाइपोथेसिस दी गई है वहाँ पे कि जो वायरस है दैट मस्ट हैव जंप फ्रॉम बैट डायरेक्टली टू ह्यूमन, बैट की कंजम्पशन से डायरेक्टली ह्यूमन पे आ गई होगी, या नहीं तो बैट टू पैंगोलियन एंड देन टू ह्यूमन, right? So bat is the most important carrier of the coronavirus. तो bat to pangolin to human, right? और वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ मार्केट है, वाइल्ड लाइफ मार्केट का नाम है वेट मार्केट। तो कुछ कंसर्न्स रेज किए गए हैं जो हमारे वाइल्ड लाइफ मार्केट्स है, इलीगल ट्रेड्स है, that is a growing problem for the country like both India, China and in this global arena, because सिर्फ environmental problem नहीं है, कहीं ना कहीं वो ह्यूमन एपिडेमिक में लास्ट में जाके कन्वर्ट हो रही है। उसके अलावा जो ट्रैफिकिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ है या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ल्यूक्रेटिव फॉर्म में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जा रही है। उसके अलावा जो इलीगल वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग है, दैट इज़ ऑल्सो इमर्जिंग अ थ्रेट टू India's unique wildlife heritage. So these are the things that has to be taken care of by country like India, China and other all Southeast Asian countries. Now कुछ वे फॉरवर्ड बताए गए हैं। तो वी नीड टू रिविजिट आवर रिलेशनशिप विथ नेचर एंड रीबिल्ड द इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे नेशन शुड वर्क टूवर्ड्स द राइजिंग 2050 की जो विजन है बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, कि लिविंग इन द हार्मनी विद द नेचर।
तो नेचर की हार्मनी के साथ रहने के लिए हमें सारे चीज़ों में तालमेल बना के रखनी होगी। एंड वी मस्ट फॉलो वन हेल्थ अप्रोच विद कंसिडर टू द हेल्थ ऑफ द पीपल, डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड द इन्वायरमेंट। उसके अलावा वी नीड टू रेगुलेट द हाई रिस्क वाइल्ड लाइफ मार्केट, जिस तरह मैंने आपको वुहान के मार्केट के बात की है, वेट मार्केट, एंड प्रमोट ग्रीन जॉब्स टूवर्ड्स अचीविंग द कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमीज। तो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इंडिया शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2000 एंड स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान फॉर इंक्लूडिंग द नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट एंड नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशंस। तो ये सारी चीज़ों को के साथ इंडिया को आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इन सारे रूल्स को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट बनाने की ज़रूरत है, राइट। और मैं ये बता दूं कि हमने एक डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि डेडिकेटेड है सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो हर सुबह आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगी और इवनिंग में आप अपने आंसर हमें भेज सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आप हमें, जो आंसर लिख के आप हमें भेजेंगे ट्रांसक्रिप्ट, उसकी प्रॉपर इवेल्युएशन आपको दी जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक फाइंड कर लें और इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें। Now coming to the answers of the yesterday question, तो जो पहला सवाल है उसके जो करेक्ट आंसर है वो सी है, दैट बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। कि जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग बेस्ड रेट है, MCLR जो कहते हैं, दैट इज रेफर्ड एज द मिनिमम रेट दैट विच बैंक कैन नॉट लेंड एंड इन सम केसेस अलाउड बाय द RBI। और जो MCLR मेथडोलॉजी है दैट रिप्लेस द बेस रेट, जो पहले बेस रेट हुआ करते थे इंडिया में, उसको रिप्लेस करती है। और द MCLR एम्स टू इम्प्रूव द ट्रांसमिशन पॉलिसी दैट इंक्लूड द रेंटिंग रेट ऑफ द बैंक। सो द सोर्स फॉर दिस आंसर इज इंडियन इकोनॉमी बाय द रमेश सिंह। Now the second question, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी। तो गवर्नर, बेसिकली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए, नॉट बी। सो ए इज द करेक्ट आंसर। So the governor appoints the state election commissioner for determining the condition of services on the tenure of office। और जो statement 2 है वो incorrect है, that he appoints the chairman and a member of the state public service commission, however they cannot be removed by the president and not by the governor। तो उसके लिए रिमूवल के लिए प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ती है, ना कि गवर्नर उन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हियर इज ए, ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टू द टुडेज MCQ, आज के जो सवाल हैं उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला सवाल है वो इंडियन इकोनॉमी से, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू टैक्स हेवंस। सो टैक्स हेवंस आर द कंट्री दैट हैव नियर और लो जीरो टैक्सेस एंड दे डू नॉट शेयर द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विद एनी ऑफ द टैक्स अथॉरिटीज। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। सो वट एवर यू फील इज द करेक्ट आंसर, राइट योर आंसर इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड प्लीज़ पार्टिसिपेट करें क्वेश्चन आंसर सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाएँ, उसके थीम को समझ पाएँ, उसके कंटेंट को समझ पाएँ और अपने जो आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम है उसका ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँ। सो डू पार्टिसिपेट, राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी। आपको दो स्टेटमेंट कंसिडर करना है। गवर्नर इज इलेक्टेड बाय द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज एंड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज नॉट एम्प्लॉयड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन, ए, बी, सी या फिर डी। इसके भी आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। और अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।